Good morning, all of you. To start with another session on promotion mix. In the previous lecture, we have studied what exactly the promotion mix, what are the elements of the promotion mix. We also studied about various push and pull strategies of promotion mix. In this session, we are going to study further what exactly the promotion includes and how it works. So, ready? Yeah. We have to understand about what promotion is all about, how it is helpful in increasing the sales, increasing the business, how it is helping the company to go ahead. The promotion mix, try to understand what exactly the promotion mix over here. The promotion mix is also known as a marketing communication mix. The promotion mix is also known as a marketing communication mix. It is the specific blend of promotion tools that makes the company uses. Blend means दो चार चीजों को मिला के that the company uses to persuasively communicate customer value and build customer relationship. दो चार important word है यहाँ पे. The most important thing is persuasively communicate customer value and build customer relationship. We have to create a customer value and have to build a strong customer relationship. कोई भी कंपनी का सक्सेस वो कस्टमर के डिपेंड होता है. कस्टमर जितने ज्यादा होंगे उतना कंपनी का ग्रोथ बिजनेस भी ज्यादा होगा. Until and unless you are not having a strong customer base, you will not be able to survive in the market. अब हमें कौन से टूल्स इस्तेमाल करने हैं, हमने इसके बारे में प्रीवियसली देखा. अब थोड़ा सा डिटेल में चाहिए. Number 1, personal selling. Number 2, sales promotion, public relations, direct mails, trade fairs and exhibitions, advertising the product, sponsorship, and also online promotions. What are the area which is being covered over here in the promotion mix? Number 1, personal selling. Try to sell it personally, individually. इससे बेहतर सेलिंग और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि इस पे हम एक एक पर्सन को मिलते हैं, इंडिविजुअली हम लोग डील करते हैं, लोगों से मिलते हैं. इंडिविजुअली कस्टमर को मिलने का हमें फायदा क्या होता है कि कस्टमर की नीड्स, वांट्स, लाइक्स, डिसलाइक सब कुछ हमें समझता है. इज कॉल्ड एज अ पर्सनल सेलिंग. Then comes sales promotion, जिसमें हमने बात की थी वेरियस ऑफर्स, स्कीम्स, डिस्काउंट्स. अलग अलग प्रोडक्ट को ध्यान में रख के उसके साथ में क्या हम बेहतर कर सकते हैं इज अ सेल्स प्रमोशन. देन वी हैव टू डेवलप अ पब्लिक रिलेशंस. मैंने पहले भी बताया, we have to do the relationship marketing by organizing events, by running a loyalty programs, by endorsement, by giving them a kind of a free coupons or something like that. The people should remember you. Then comes the direct mail. Email or directly mail send karo. Let them read, not read. At least they should recognize कि कहीं से तो यहाँ से मुझे मेल आया है, ये कंपनी ने मुझे ईमेल किया है. You can also send a direct mail, postcard. You may send the Diwali greetings. You may send the Christmas greeting. You may send the Eid Mubarak greeting. अपने कस्टमर को at least you have to develop that kind of a thing. Or what you can do,
जितने भी लोग आप जानते हो, जितने भी लोगों को आप पहचानते हो, एटलीस्ट उनका बर्थडे आपको पता है, तो एटलीस्ट इन योर सेटअप ऐसा करो कि उनका बर्थडे रिफ्लेक्ट हो जाए. सेम डे यू सेंड अ विश, it will create a bonding amongst you and the person. So try to develop that. Then organize or being a part of trade fairs and exhibition का हिस्सा बनो, फेयर का हिस्सा बनो. कोई फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी एग्जीबिशन लगा है, तो आप अगर बिल्डर हो, कंस्ट्रक्शन कंपनी चलाते हो, तो आपका प्रॉपर्टी ऐसा वहां पे लॉन्च करो. Let the people come and see your product. Whether they want to buy or not to buy is a different story. At least they should know what company is offering. At least they should know what company is having. So you must give every opportunity to reach the people. You try to reach the people in a maximum way. You try to react to the people in a proper way. So organize the trade fairs and exhibitions. Then comes advertising. मैंने पहले भी कहा था, सिर्फ एडवर्टाइजिंग प्रमोशन नहीं होता है. आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें आती है प्रमोशन के अंदर, और हम आज तक एक ही बात समझते हैं कि प्रमोशन करना, एडवर्टाइज करना. या एडवर्टाइजिंग इज अ वन पार्ट ऑफ प्रमोशन, नॉट एवरीथिंग. सो दैट यू हैव टू डेवलप advertising. You can use many media, TV, radio, newspaper, magazine, poster, banner, flyers, many things. You must sponsor the thing. For example, the name of your company is ABC. तो ABC sponsors IPL. देखो ABC का कितना नाम बढ़ेगा, कितने लोग ABC को जानेंगे. Develop such kind of environment. Try to sponsor the one. Then you also think about the online promotion. आजकल मैंने पहले ही कहा, it's a world of a digital media. You have to be online. You have to develop the various things. You have to develop online platform. You have to be in touch with the people by developing your own social media. आप एक WhatsApp पे ग्रुप बना लो, आप Facebook में आपका ग्रुप बना लो. अरे और भी आगे सोच सकते हैं, आप प्ले स्टोर में आपका अपना खुद का ऐप बना लो ना. Let the people join you. Let the people come to you. It is going to be an app who will help the people to go ahead with you. They start believing in you. They start purchasing your product. They start telling others to purchase your product. They will develop a trust in you. उनको आपके ऊपर एक विश्वास आएगा, उनको आपके ऊपर खरीदने की इच्छा आएगी, और आपका पर्पस यही है कि आप मैक्सिमम कस्टमर को मिलो, मैक्सिमम कस्टमर को पहुंचो. That is what the ultimate goal we need to achieve. So, personal selling, sales promotion, public relation, direct mail, trade fairs and exhibition, advertising and sponsorship, and also online promotion. These are the various elements of promotion mix. Exam में अगर question आता है, what are the elements of promotion mix? So this will be the answer. अब हम one by one देखेंगे. Personal selling. You can see one salesman came to you with the product, tries to explain the product. You can see the way he's dressed, very good. You can see the way he's decorated himself, the proper hairstyle, the proper expression. Expression is very important. If you are going to sell a product with a dull face, nobody will purchase the product because you are the face of the product. You have to present yourself in such a way that people should eager to buy your product. लोगों को लगना मांगता है कि नहीं, ये बंदा सही है, ये पर्सन सही बेचेगा, ये अपने को फंसाएगा नहीं. You have to produce that kind of a trust. इतना आसान नहीं है पर्सनल सेलिंग करना. It is not that simple. You have to make people believe you. आपके ऊपर लोगों का इतना विश्वास आ जाए, इतना बिलीव आ जाए कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीदे. And it is not that simple as I told you. You have to create that confidence in the mind of the people. Until and unless you will not be able to develop confidence in the minds of the people, people will not buy. So you have to be presentable, you have to be perfect. Then only you will be able to sell the product personally, and you can earn a good profit for the company. Yeah, definitely. आपको ये भी करना पड़ेगा, आपके सारे सेल्समैन को ट्रेनिंग देना पड़ेगा.
ध्यान से सुनना, ये वो लोग हैं जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जा रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये वो लोग हैं जो कस्टमर को बताएंगे, कस्टमर वो सुनने वाले हैं। तुम्हारा इतना मेहनत से बनाया हुआ प्रोडक्ट फेल्यूर हो जाएगा अगर ये लोगों ने अपना काम बराबर नहीं किया। यस और नो? यस। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ट्रेन दिस पीपल। सो पर्सनल सेविंग आप लोगों को समझ में आया, आई होप। Okay, then comes another thing is sales promotion. Sales promotion means what? 50% off, एक के ऊपर एक फ्री, डिस्काउंट, डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स जो कस्टमर तक हम लेके जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होता है हमसे, कस्टमर हमारे पास खींच के आता है, कस्टमर हमारे पे बिलीफ बढ़ाता है, कस्टमर हमारे पे विश्वास करता है कि नहीं ये कंपनी अपने को डिस्काउंट देती है, दूसरा कोई देता नहीं, इधर से लेना चाहिए, ये कंपनी अपने को बेहतर प्रोडक्ट बेचती है, दूसरा कोई देता नहीं, इससे लेना चाहिए। That kind of confidence we are developing in them, that is what we can call it as a sales promotion. The third thing comes is public relation. आप देख सकते हो PR डिपार्टमेंट, every company must have a PR department. अब PR डिपार्टमेंट का रोल क्या है? To develop the relationship with the outsider, whether they are our customer or not our customer, whether they are with us or not with us, whether they are a new customer, old customer, कुछ भी हो, we have to maintain healthy relationship in the society. बहुत सारे ऐसे लोग होने चाहिए जो आपको जानते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होने चाहिए जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं. You have to develop a strong PR. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जितने लोगों को आप जानते हो वही आपके खरीदार रहने वाले हैं, जिसको आप नहीं जानते हो वो जिंदगी में कभी आपका प्रोडक्ट खरीदने वाले नहीं. दैट इज व्हाट वी कैन कॉल इट इज अ पीआर. सो आपका एक पर्सन होना चाहिए, द पर्सन हु इज अ मैनेजर, द पर्सन हु इज इन चार्ज ऑफ द पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट, और जो कंपनी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो कंपनी के लिए मीडिया में जाके बात करे, जो कंपनी के लिए प्रेस नोट बनाए, जो कंपनी के लिए सारी इंफॉर्मेशन क्रिएट करे, जो भी कंपनी का नाम सोसाइटी में बेहतर कर सकता है, दैट इज पब्लिक रिलेशन. देन कम्स डायरेक्ट मेल. तो मैंने पहले ही बताया, you can send a postcard, you can send a thanks letter, you can send a gratitude letter, you can send email, anything you can do, but you can do just it to make customer believe in you, make customer take an interest in you कि ये कंपनी मुझे हर समय याद करती है, this company helps me a lot, this company remember me every time, this company is I can say if they are fraud, they must not have contacted me, but they are not fraud company. They are good company. ये इमेज आपको क्रिएट करना है, इसी को कहा जाता है डायरेक्ट मेल से एडवर्टाइज करना, टू रीच द मैक्सिमम पीपल विद द हेल्प ऑफ मेलिंग देम. द नेक्स्ट थिंग कम्स इज ट्रेड फेयर्स एंड एग्जीबिशन. मैंने पहले भी बताया, आप यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हो कि हाउ कंपनी इज ऑर्गेनाइजिंग अ कार एग्जीबिशन. एग्जीबिशन का मतलब क्या होता है, क्यों कंपनी इसके पीछे इतना करोड़ों का खर्चा करती है, मालूम है क्या? इसके पीछे करोड़ों का खर्चा करने का एक ही रीजन है कि यहाँ पे जितने भी लोगों को हम एग्जीबिशन में बुलाएंगे, ये सारे लोग वो है जो अपने कार को परचेस भी कर सकते हैं. हमें तो वैसे ही लोग चाहिए ना. तो इनवाइट दिस पीपल, call these people, give them a proper high tea or evening snacks or a lunch or a dinner, but at the same time allow them to spend a good time over here. If they will not purchase, they will tell others to purchase your product, and those who are of their category, their caliber, their kind of a businessman. So you have to develop such kind of relationship. You have to develop such kind of a
relationship amongst the things. The next thing comes is in advertising, the simplest part. लेक्चर की शुरुआत में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि अगर आपके मन में ऐसी बात है कि एडवर्टाइज करना मतलब प्रमोशन करना, तो नहीं है। प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग में बहुत डिफरेंस है। प्रमोशन इज अ वाइडर, एडवर्टाइजिंग इज वन पार्ट। एक कोई भी प्रोडक्ट ले लो, बैनर बना दो, फ्लायर बना दो, पोस्टर बना दो, टीवी में लेके जाओ, रेडियो में लेके जाओ, यू कैन हैव एन एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी इन एडवर्टाइजिंग। बट सिर्फ एडवर्टाइजिंग से काम चलने वाला नहीं है, उसके साथ में इतने सारे जो हम पढ़ रहे हैं उसका भी हमें प्रॉपरली हेल्प लेना पड़ेगा। देन कम स्पॉन्सरशिप। ध्यान से देखना दोस्तों, एक कार का फोटो है, आप इस कार के ऊपर देख सकते हो एक कंपनी का नाम। मेरे को सबसे पहले जो कंपनी का नाम दिखता है उसमें आपको पता नहीं कौन सा दिखता है, लेकिन मैं तो इसमें से जो फेमस कंपनी जानता हूँ वो है शेल। It's an international brand, Shell company. And there is another name written with the Shell is Panasoil. And there are few more names are there which we can see but which is not visible properly. Car एक है, you know, there is, हाँ, car एक है. I will explain the sponsorship in detail. For example, you are a cricketer and you are playing for the Indian cricket team. You are a batsman and you are playing at number 3 position in Indian cricket team. आपको 3 नंबर की पोजीशन पे बैटिंग मिलने वाली है। अगर आपको पता है कि यू आर द इम्पोर्टेंट प्लेयर, दुनिया को पता है, देश में सबको पता है कि यू आर इम्पोर्टेंट प्लेयर और आपका पोजीशन 3rd नंबर पे है और आप ज्यादा टाइम क्रीज पे रुकते हो वैसे खिलाड़ी हो, तो वो आपको स्पॉन्सर करेंगे, आपको एंडोर्समेंट देंगे कि आप जो क्रिकेट का बैट लेके जाओगे ना, वो बैट के ऊपर मेरे कंपनी का स्टिकर चाहिए, स्पॉन्सर करेंगे। हेलमेट लेके जाओगे तो मेरा लोगो लगा के जाना, सब हम देंगे आपको। ये तो 1% की बात होगी। अभी इंडियन क्रिकेट टीम सभी लोगों को एक ही काइंड का वीवो का लोगो वाला, सब लोग, यानी वीवो ने पूरा क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया एंड उसका पैसा गवर्नमेंट को भी मिलता है, बीसीसीआई को भी मिलता है। तो स्पॉन्सर करना, फॉर एग्जांपल वीवो ऑर्गेनाइजेस फिल्म फेयर अवार्ड, तो जितनी भी बार फिल्म फेयर अवार्ड में नाम लिया जाएगा अवार्ड का, उतनी बार वीवो 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 आएगा। जैसे वीवो आईपीएल, आईपीएल तो हम लोग ऐसा वीवो के बगैर बोलते ही नहीं थे। देखो कितना फेमस हो गया नाम वीवो। तीसरी बात बताता हूँ, रेलवे स्टेशन के अंदर वीवो घाट के ऊपर वीवो बोरीवली, अरे बोरीवली स्टेशन है कि वीवो स्टेशन है, वही समझ में। देखो कैसे स्पॉन्सर करते हैं, एक्सपेंडिचर करते हैं। You know, this is called a sponsorship. I hope, Majid, I able to explain what is your doubt. Yes, Majid Sheikh, you understood? Yeah. If you correct, then I will know okay, you are understood. Yeah, thank you very much. So, this is what a sponsorship kind of a thing. Then comes another way of advertising. Yeah, online promotion, dosto. It's a big technical digital world and the world of digital marketing. Don't limit yourself कि मेरे को सिर्फ घटकोपर के अंदर ही बिजनेस करने का, बस अभी उससे बाहर आ जाओ दोस्तों। The whole world is waiting for you. The whole country is waiting for you. It is your capability, it is your internet knowledge, it is your networking that will bring the more customer to you. Why you are not selling your product to many? Sell it. Try to sell it to the maximum people. And you can strengthen your online business. क्या करना है, एक क्लिक के अंदर एक मैसेज डाल दिया, हजारों लोगों तक पहुंच गया। फॉर एग्जाम्पल, यू आर इन द 4000 फ्रेंड्स इन द फेसबुक, एक पोस्ट तूने फेसबुक पे डाल दिया, 4000 लोगों तक पहुंच गया। सी द पावर ऑफ सोशल मीडिया।
If you are putting the things in a WhatsApp group, एक ग्रुप में डाल दिया, एक टाइम 250 लोगों को मिल गया, अब वो 250 लोग आगे 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 किधर 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 जाके, और वही तेरा सर्कुलेट किया हुआ मैसेज किधर से और से तेरे पास आता है। मतलब समझ जाना कि इसका पावर कितना है। So why don't you are using the social media to sell the product? I hope you understood all the different concept. It is personal selling, sales promotion, public relation, direct mail, trade fairs and exhibition, advertising, sponsorship, and also online promotion. If you understood this video, say yes in the chat box. Immediately I am starting with another video. Immediately I am starting with another video. Be ready for that. 1 second, dear students. 1 second, I'm starting. Switch off your sound. Please switch off your sound. Who is this? I said switch off the sound so that I will remove you from the group. Who is this Ankita? Ankita, you don't understand? Last chance. Yeah. Can you see one particular video having a car, jeep, something like that? Yes, you can see a particular video. It is written what is promotion, any form of promotion. Yes, you can see. Very good, very good. Now this will be the last video to understand the promotion in this today's session. So it will be better for you. Now, come on, little bit fast recap to what we studied till now. What is promotion? Any form of communication. ऐसा कोई भी तरीका कम्युनिकेशन करने का जो बिजनेस यूज करता है टू इन्फॉर्म, लोगों को बताने के लिए, टू परसुएड, लोगों को मनाने के लिए, और रिमाइंड, लोगों को याद कराने के लिए। अबाउट क्या, लेकिन क्या इन्फॉर्म करना है, क्या परसुएड करना है, क्या रिमाइंड कराना है? अबाउट इट्स प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट के बारे में, एंड improve its public image and attract the potential customer. देखो इंपॉर्टेंट 3 बातें होती है। ये सब चीज हम क्यों करते हैं? अपने प्रोडक्ट को लोगों तक बताने के लिए, हमारे इमेज को इंप्रूव करने के लिए, लोगों के अंदर हमारा ब्रांड बनाने के लिए, एंड पोटेंशियल कस्टमर जो ये प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं लेकिन जिन लोगों ने खरीदा नहीं है उनको खरीदने को मोटिवेट और मजबूर करने के लिए ये चीजें हम करते हैं। We are doing these things to motivate the people. Yes or no? So this we have to understand what is promotion. अब इसमें हमें क्या पढ़ना है? प्रमोशन का रोल सिंपल है। ये पूरा से अभी तक हमने जितना पढ़ा उसका रिवीजन है। प्रमोशन करना मतलब क्या? कन्विंस द कस्टमर टू बाय देयर प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट को आप खरीदो, कॉम्पिटिटर से मत खरीदो क्योंकि उससे बेहतर हमारा प्रोडक्ट है। अभी हम प्रमोशन में क्या करेंगे? प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में बताएंगे, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स के बारे में बताएंगे, वेरी इंपॉर्टेंटली ये प्रोडक्ट कहाँ मिलेगा, वेयर द प्रोडक्ट आर सोल्ड वो बताएंगे, एडवर्टाइज सेल्स करेंगे, आंसर द कस्टमर्स क्वेश्चन, कस्टमर्स के क्वेश्चन के आंसर करेंगे, एंड ऑल्सो इट विल हेल्प अस टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट। ये होता है प्रोडक्ट प्रमोशन। देन अगर आपकी कंपनी हो तो आप अपने कंपनी का भी प्रमोशन कर सकते हो। आजकल तो हॉस्पिटल भी प्रमोशन करता है कि 6 दिन का कोरोना का पैकेज 2 लाख रुपया, क्या होता है उसके अंदर पता नहीं, आदमी बचेगा नहीं बचेगा कुछ पता नहीं, प्रमोशन करते हैं। हेल्प टू ब्रिंग द चेंज, टेक अ स्टैंड और ट्रेड और कम्युनिटी। तो ये अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बता सकते हैं, आपके सर्विस के बारे में भी आप प्रमोशन कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने जो पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ प्रमोशनल मिक्स, उसमें क्या क्या आता है? पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिसिटी, इसके बारे में हमने अंदर थोड़ा देखा। अब यूज मोर देन वन, ध्यान से सुनना, कभी भी कोई भी एक टाइप ऑफ प्रमोशन पे डिपेंड रहना नहीं। ऑलवेज अप्लाई 2 और मोर चैनल ऑफ प्रमोशन। कभी कभी क्या हो जाता है, एडवर्टाइजमेंट पे ही पूरा डिपेंड रह गए और अपना एडवर्टाइजमेंट फेल गया, पब्लिक को पसंद नहीं आ गया, तो प्रोडक्ट भी फेल जाएगा। तो आपको ऐसे टाइम पे अगर आपने क्या किया रहता था, एडवर्टाइजिंग और प्रमोशन और पब्लिसिटी तीनों पे फोकस किया रहता था, तो एडवर्टाइजिंग गलत हो जाएगा तो चलेगा,
प्रमोशन और पब्लिसिटी तो है, कभी पब्लिसिटी गलत हो गया तो चलेगा, एडवर्टाइजिंग तो है, तो ऐसा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए कहा गया है यूज मोर देन वन टाइप ऑफ प्रमोशन, डोंट डिपेंड अपॉन द सिंगल टाइप ऑफ प्रमोशन। ईच टाइप इज डिजाइन टू कॉम्प्लीमेंट द अदर्स। ये जितने भी मीडिया है, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग में हम बोलते हैं कुछ और, प्रमोशन में हम कुछ और बोलते हैं, लोगों को डायरेक्ट मेलिंग करते हैं उसमें और कुछ और बताते हैं, तो पब्लिक हम पे हंसेगी कि क्या कंपनी। एडवर्टाइजिंग में कुछ और बोलता है, पर्सनल सेलिंग में तुम्हारा सेल्समैन आता है कुछ और बोलता है। हम कभी कभी होता है ना, टीवी में तो एड में तो ऐसा बताया था और तुम ऐसा बोल रहे हो, हम तुरंत बोलते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एवरीथिंग मस्ट बी कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ में मिलके चलना चाहिए। ऑल मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड, साथ में मिलके होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ अ प्रमोशनल बजट वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी प्रमोशन करना है तो उसका बजट होना बहुत ही जरूरी है। बजट के बगैर कुछ भी आगे मत बढ़ाओ। अब जैसे कि टाइप्स ऑफ प्रमोशन मैंने पहले भी पढ़ा, थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। एडवर्टाइजिंग पहले क्या होता है, एडवर्टाइजिंग सबसे पहले तो पेड फॉर्म है, पैसा देके किया गया है, कोई फ्री में नहीं करता एडवर्टाइजिंग। अच्छा, वो जो एडवर्टाइज करने वाला है ना, वो शायद खुद खरीदता है कि नहीं खरीदता वो भी नहीं पता है, लेकिन वो एडवर्टाइज करता है क्योंकि उसको पैसा मिलता है, बिकॉज इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन। ये पर्सनल नहीं है, तो टीवी पे आ गया, अपने को लगता है कि वो अपने को देख रहा है, लेकिन वो अपने को देख ही नहीं रहे, वो कैमरे को देख रहे हैं। So it is a kind of a paid. For example, right now I am trying to teach you. I am looking at the camera, and if I am looking at the camera, you will feel that sir is looking at me, but actually I am not looking at you. I am looking at the camera because you people are not visible to me until and unless I own your videos and everything. You own your videos and everything. तभी जाके थोड़ा पर्सनल पर। तो टीवी में आने वाला एडवर्टाइजमेंट तो लाखों करोड़ों लोगों तक जाता है, इतने पॉपुलेशन में जाता है, तो उसमें कैसे तुम जज करेगा कि कौन किसको क्या देख रहा है। अरे और हमारा तो सबसे बुरा आदत होता है, एडवर्टाइजमेंट आया कि चैनल चेंज, बरोबर है। सो प्रमोशन ऑफ आइडियाज गुड्स और सर्विसेज बाय द आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, एडवर्टाइज करने वाला एक स्पॉन्सर होता है। एडवर्टाइजिंग के फीचर्स की अगर मैं बात करूं, तो टाइम उसका फिक्स होता है, स्पेस डिवोटेड टू इट्स पेड फॉर, पैसा दिया है तो उसका ये भी फायदा उठाएगी। it uses a set of format to carry the message rather than one to one selling। ये one to one selling नहीं, एक जनरल मैसेज होता है जो पब्लिक में जाता है, अब पब्लिक डिसाइड करे whether to buy or not। इट आइडेंटिफाइज द स्पॉन्सर ऑफ द मैसेज। इसमें क्या होता है, स्पॉन्सर डिसाइड होता है कि कौन इसको स्पॉन्सर करने वाला है। एडवर्टाइजिंग, उसके एडवांटेज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल सी द मैसेज एट अ टाइम। लार्ज नंबर ऑफ पीपल कैन सी द मैसेज, बहुत सारे लोगों तक हमारा मैसेज पहुंचेगा। कॉस्ट पर पोटेंशियल कस्टमर्स आर लो। एक एडवर्टाइजमेंट करने का सपोज 1 लाख हुआ, लेकिन उसको देखने वाले की संख्या 10 करोड़ है, तो एक पर्सन को मेरे ख्याल से 10 पैसे में पड़ेगा एक पर्सन को दिखाना। अब उसको वो खरीदना नहीं खरीदना वो बात की बात है, लेकिन एक बात तो पक्की है कि नहीं, कि कस्टमर जानता है कि ये कंपनी का ये प्रोडक्ट मार्केट में मिल रहा है। कैन चूज द अप्रोप्रिएट मीडिया फॉर टारगेट ऑडियंस, कैन चूज द अप्रोप्रिएट मीडिया फॉर टारगेट ऑडियंस। आप जैसा आपका टारगेट, जैसा आपके बायर, जैसे आपके पोटेंशियलिटी, जो लोग आपको खरीदने वाले हैं वो क्या पढ़ते हैं, वो कौन सा चैनल देखते हैं, उस पर जाओ ना। आप सब कुछ सबको तो नहीं बेच सकने वाले हो, आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू रीच द पीपल एंड यू हैव टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड कि कौन सा आपके लिए सही है। जैसे कि न्यूज़पेपर हो, अगर आप लोगों को गुजरात के एकदम इंटीरियर पार्ट में ऐड करना है, तो आपको वो गुजराती न्यूज़पेपर में देना ही पड़ेगा, वो भी उधर के लोकल महाराष्ट्र में अगर एक बहुत गांव खेड़े में जाके आपको एडवर्टाइज करना है, तो वहां के लोकल न्यूज़पेपर में ऐड देना पड़ेगा, नहीं तो उसका इंग्लिश में देखिए कोई फायदा नहीं है। जहाँ पे केबल ही नहीं है वहां पे टीवी भी देखिए भी कोई फायदा नहीं है। हाँ, रेडियो में फायदा हो सकता है, लेकिन नेटवर्क तो होना चाहिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स है दोस्तों, तो जो भी चूज करेगा प्रॉपर सोच समझ के करना है। सब्जेक्ट ऑफ रिपीट व्यूइंग, इसका फायदा है, बार बार वो चलता रहता है, रिपीट आते रहता है। प्री सेल प्रोडक्ट, यस, मेकअप कंज्यूमर माइंड बिफोर दे शॉप। कंज्यूमर परचेस करे उसके पहले उसका अपन माइंड रेडी कर सकते हैं कि हाँ एडवर्टाइज दिखाएगा तो आएगा और खरीदेगा। लेकिन एडवर्टाइजिंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी है, जैसे कि कैन नॉट फोकस वेल ऑन इंडिविजुअल नीड्स। एक एक बंदे की जरूरत को हम ध्यान नहीं दे सकते। कभी कभी कोई प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आता है, हमको बहुत पसंद आ जाता है, लेकिन हमारे घर में कोई ऐसा रहता है वो बोलते हैं नहीं रेट बराबर नहीं है, कुछ भी बताया, लेकिन हम बोलते नहीं बहुत बढ़िया ही है यार। तो ऐसी सिचुएशन जो आ जाती है, ऐसी परिस्थिति जब आ जाती है,
तो एक एडवर्टाइजमेंट सबके लिए तो काम नहीं कर पाएगा ना. It will not be able to satisfy the needs of everyone whoever wants to. So you have to understand the concept. You have to understand the philosophy that जरूरी नहीं कि एक चीज सबको एप्लीकेबल होगी. अब some forms are too expensive. अगर आपको टीवी में एडवर्टाइज करना है, if you want to advertise your product in the television, it is expensive. इतना आसान नहीं है टीवी में जाना. It's very very costly also. You cannot bear the cost also. इसका अपने को खर्चा लगता है. You have to spend a lot. तो उसका डिसएडवांटेज है. Then comes sometime it is wasteful and ineffective. कभी कभी तो पूरा एड अपना वेस्ट होता है और इनइफेक्टिव होता है, यानी कि कोई उसका असर ही नहीं हुआ लोगों पे. Often advertisement must be brief due to cost and the need to attract and hold the customer attention. कभी कभी एडवर्टाइजमेंट बहुत शॉर्ट में बनाना पड़ता है, ध्यान देके बनाना पड़ता है, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि अपना मैसेज भी बराबर जाए न जाए, पूरा पैसा वेस्ट हो जाता है. तो पहला हमने देखा एडवर्टाइजिंग. दूसरा हम देखेंगे डायरेक्ट मेलिंग. मैंने पहले भी बताया दो तरीके से कर सकते हैं, घर पे भेजो लेटर, ईमेल, या तो फिर ईमेल भेज दो. Advertising directed to targeted group of prospects and customers rather than to a mass audience. दो तरीके के एडवर्टाइजिंग, जैसे कि प्रिंटेड डायरेक्ट मेल एंड इलेक्ट्रॉनिक डायरेक्ट मेल. प्रिंटेड डायरेक्ट मेल एंड ई डायरेक्ट मेल्स. सो टारगेटेड ग्रुप तक पहुंचना हमें जरूरी, rather than to the mass audience. हम सभी लोगों को सब कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग डायरेक्ट मेल करते हैं. आप देख सकते हो डायरेक्ट मेलिंग, डायरेक्ट मेल, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू जनरेट द सेल्स और लीड्स फॉर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव परस्यू. एक बार लोगों को मेल गया रहेगा ना, तो अपने अपने सेल्समैन को उधर तक जाके बात करना ज्यादा आसान होता है, इजी होता है, अंडरस्टैंडेबल होता है, बेटर होता है. एंड एडवांटेज इज वन कम्युनिकेशन विद कस्टमर ऑन प्रमोशन. डिसएडवांटेज इज कंज्यूमर कंप्लेंट ऑन जंक. आपको बहुत ईमेल्स आएंगे ऐसे जिससे उनको प्रॉब्लम हो रहा है. देन कम्स द पब्लिसिटी. Publicity, it involves placing, ध्यान से पढ़ना, publicity involves placing newsworthy about information of a company, product and person. ध्यान से समझना, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, कंपनी के पर्सन के बारे में और कंपनी के बारे में न्यूज देना, लोगों तक न्यूज पहुंचाना, लोगों को कंपनी के बारे में बताना, कोशिश करना पॉजिटिव. क्योंकि publicity can be positive, publicity can be negative also. It is your duty to provide the positive publicity. Ultimate objective of publicity is to build the image. Right kind of a publicity can create a positive image and maintain and improve that image in the community. और यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ये कोई एडवर्टाइजिंग जैसे खर्चा तो नहीं किया जाता है. बट इसके अंदर क्या है, वी डोंट हैव अ कंट्रोल ओवर द मैसेज. कौन क्या कब हमारे बारे में बोले हमें कुछ पता होता नहीं है. तो दिस इज व्हाट पब्लिसिटी. नाउ सेल्फ प्रमोशन. ऊपर के जो तीन है, एडवर्टाइजिंग, डायरेक्ट मेलिंग और पब्लिसिटी, ये तीनों को छोड़ के जो भी हम करते हैं कस्टमर को स्टिमुलेट करने के लिए, टू स्टिमुलेट द कस्टमर, हमारे प्रोडक्ट की तरफ खींच कर आने के लिए, उसको कहा जाता है सेल्स प्रमोशन. सेल्स प्रमोशन में इट यूजुअली इन्वॉल्व शॉर्ट टर्म एक्टिविटीज, जैसे कि कोई इंसेंटिव दे देना, जो चैनल अपने को अच्छा काम करता है डिस्ट्रीब्यूटर को एडवांटेज देना. इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? सेल्स बढ़ाना, कस्टमर बढ़ाना, नए प्रोडक्ट की तरफ लोगों को खींच के लाना, अपने स्टोर का इमेज क्रिएट करना, अपने कंपनी का इमेज क्रिएट करना. तो प्रमोशन में क्या क्या आ जाता है? ट्रेड प्रमोशन. अब देख सकते हो शॉपिंग मॉल के अंदर प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना, ट्रेड शो ऑर्गेनाइज करना, स्पेशल डिस्काउंट ऑफर करना, उसके बाद जो भी ज्यादा खरीदता है उसको प्रीमियम कस्टमर बोलना, प्रीमियम रिटेलर बोलना, जो ज्यादा बेचता है उन लोगों को, उसकी फैमिली को टूर ऑफर करना, घूमने जाना, स्पेशल इंसेंटिव देना, बेनिफिट देना. मैक्सिमम लोग जो अपने लिए काम कर रहे हैं उनको प्रमोट करना, उसी को मतलब है प्रमोशन. फिर वो ट्रेड प्रमोशन होता है या तो फिर अनदर काइंड ऑफ अ प्रमोशन लाइक कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन. अब कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन के अंदर क्या होना कि टाइज इन प्रमोशन, इनवॉल्व स्टोर मोर कंपनीज, लॉयल मार्केटिंग प्रोग्राम रन करना, जो भी कस्टमर रेगुलर है उसको प्रीमियम में प्रोडक्ट, डिस्काउंट में प्रोडक्ट देना, उस कस्टमर को वैल्यूड कस्टमर बोलना, वैल्यूड कस्टमर की लिस्ट बनाना, उनको सही सही समय पे उनको सही सही स्कीम्स देते रहना, फ्री पॉइंट्स देना. देखो ना जोमेटो वाले देते हैं, बहुत सारे कंपनी देती है. आपको जो प्रीमियम कस्टमर है तो उसको ऑफर देती है,
तो अलग अलग चीज उनके लिए कूपन्स बेनिफिट सब प्रोवाइड करना। देन और क्या कर सकते हैं आप, स्पॉन्सरशिप, देखो कैप के ऊपर लोगो लगा के दे दिया, कार के ऊपर लोगो लगा के दे दिया, शॉपिंग मॉल में ट्रेडमार्क वगैरह लोगो लगा के दे दिया, प्रोडक्ट को फ्री सैंपल की तरह देना शुरू कर दिया। कुछ भी हो जाए, कस्टमर अपना प्रोडक्ट खरीदना चाहिए। ये अलग अलग तरीके हैं प्रमोट करने के, अलग अलग वे से हम क्या कर सकते हैं, प्रमोट। देन ये सबको छोड़ के जो आता है वो होता है पर्सनल सेलिंग। अभी तक कैसा था, सब नॉन पर्सनल था, जनरली कंपनी करती थी, कस्टमर आते थे। अब लास्टली आता है पर्सनल सेलिंग। इसमें क्या क्या आएगा, एडवर्टाइज करना, पब्लिसिटी करना, सेल्स प्रमोशन, नॉन पर्सनल। बट इसमें क्या है, डायरेक्ट वन टू वन। इसमें दो अलग अलग एलिमेंट है, ऑर्डर टेकिंग लोग रहते हैं और ऑर्डर गेटिंग। ऑर्डर टेकिंग पीपल, ऑर्डर गेटिंग पीपल, ऑर्डर टेकिंग पर्सनल, ऑर्डर गेटिंग पर्सनल। तो ऑर्डर टेकिंग वाले कैशियर्स, काउंटर क्लर्क्स एंड सेल्स एसोसिएट, और ऑर्डर गेटिंग में प्रोफेशनल सेल्स पीपल जो कस्टमर मार्केट में जाके जाके दे। पर्सनल सेलिंग में फायदा क्या होता है, एक कस्टमर के साथ आप खड़े रह के कस्टमर की नीड पूछ सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। डिजाइन टू अ कंप्लीट सेल्स वंस कस्टमर हैज बीन अट्रैक्टेड टू अ बिजनेस। आपके बिजनेस में कस्टमर अट्रैक्ट हो गए तो उसको समझा सकते हैं, फ्लेक्सिबल प्रमोशन कर सकते हैं। बहुत सारा बेनिफिट है इसके अंदर बहुत फायदा है। आप इंडिविजुअल गाइड कर सकते हैं, लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक समय पे आप एक ही बंदे को गाइड कर सकते हो, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। कैन ओनली हेल्प वन पर्सन एट अ टाइम। एम्प्लॉइज मस्ट कंप्लीटली अंडरस्टैंड द सेलिंग प्रोसेस एंड बी वेल ट्रेन्ड। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपको आपके एम्प्लॉय को तैयार नहीं किया है, आपका एम्प्लॉय परफेक्ट नॉलेजेबल नहीं है, if your employee is not having a convincing power, वो आपके कस्टमर को खो देगा, खो देगा। बिकॉज वन टू वन इंटरेक्शन है। कस्टमर आजकल स्मार्ट है, डिजिटल वर्ल्ड में जाके आया है, ऑनलाइन सर्च करके आया है, दूसरे कमरे के प्राइस को जान के आया है, आज की लेटेस्ट वैरायटी समझता है। और तू उसको फंसाने की कोशिश मत कर, तू उसको कन्विंस कर कि यस दिस प्रोडक्ट इज रियली बेटर फॉर यू परचेस। खर्चा है इसके अंदर, इसका डिसएडवांटेज यही है कि इसके अंदर खर्चा ज्यादा ज्यादा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आपको ज्वाइन करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, संभालना पड़ता है। तो ये इसका फायदा है। और अगर सही तरीके से नहीं लिया तो इसका नुकसान भी है, डिसएडवांटेज है। सो दोस्तों, दिस इज व्हाट ऑल प्रमोशन मिक्स इज ऑल अबाउट। ये सारी चीजें कवर कर करके प्रमोशन मिक्स बनती है। आई होप you understood the lecture properly. I able to deliver the things in a proper way. Again I am telling you, don't miss the sessions. कोई भी lecture miss मत करो, attend all the sessions. Thank you very much.